So, okay, so yesterday we have already discussed about of India and what is the need behind drainage system. And under drainage, we discussed many terms also. Okay, many terms also. Under drainage, we have discussed many terms also, like what do you mean by drainage system, what is river system, what is an water divide. So, do you have any confusion in all these terms? Do you have any confusion? If you are having any confusion, then ask. Regarding the term drainage, as we already discussed, that term drainage describes the river system of an area, and river system refers to the main river together with their tributaries. And whenever and whatever area drained by tributaries of the main river and drained by main river, all become a part of the basin of the main river. Means Ganga river system. Whenever we talk about Ganga river system, that means Ganga together with their tributaries Ghagra, Sharda, um, uh, Ghagra, Sharda, Gadak, Kosi, Son, etc. And the area drained by all these tributaries become a part of Ganga system. In India, the relief features divide the drainage system into two broad parts, and that is Himalayan river. The rivers which originate from different parts of Himalaya are called Himalayan rivers, and the rivers which originate from different parts of peninsular plateaus are called peninsular rivers. In many ways, Himalayan rivers are different from peninsular rivers. Like, as we all know that Himalayan rivers originated from different parts of Himalaya, and Himalaya is known for its loftiest peaks, glaciated peaks, greater height, and due to its height above 5,000 meter, average height of Himalaya is 6,000 meter above sea level, and you all know that snow line is found above 5,000 meter. So many of the Himalayan peaks are glaciated, which provide perennial source of water to Himalayan rivers. So Himalayan rivers like Ganga, Brahmaputra, Indus receives their water from rainfall as well as from melting of snow and ice. So they are considered as perennial in nature. They are considered as perennial rivers. Himalayan rivers are called perennial rivers, permanent rivers, because here flow of water is maintained almost throughout the year. But on the other hand, peninsular rivers are called seasonal in nature, because peninsular plateau is not known for its greater height. Their average height is 1200 meter to 1500 meters, and due to this height, its peak is not covered by snow and ice. So peninsular rivers mostly receives their water from rainfall, and their flow of water is maintained during rainy season and after the rainy season. During summer season, big water bodies, big rivers can also going to be dried up due to extreme heat conditions. So mostly peninsular rivers are seasonal in nature, whereas Himalayan rivers are perennial in nature. Mostly Himalayan rivers have long courses, and its basin area is comparatively larger than peninsular rivers. Peninsular rivers are known for their shorter courses, and their basin is smaller in nature as compared to their Himalayan counterparts. Okay? Himalayan rivers provide more fertile land for agricultural activities as compared to peninsular rivers. Himalayan river basins are also known for so many features formed by rivers and their tributaries, like I-shaped valley, gorges, V-shaped valley, and meanders, floodplains, oxbow lakes, etc. before meeting into the sea. So Himalayan basins are known for so many features formed by the rivers and their tributaries. Comparatively, in peninsular river basins, such features are not found in a large number.
In peninsular basins, mostly deltas and estuaries are formed. Estuaries are formed by west flowing rivers, and deltas are mostly formed by east flowing rivers of peninsular plateau. So in many ways, Himalayan rivers are different in nature and peninsular rivers are different in nature. So our broad relief features generally provide two types of drainage system of India, Himalayan rivers and peninsular rivers. So now let us discuss about the Himalayan rivers. So if you are having any confusion in Himalayan rivers and peninsular rivers, if you are having any confusion in the differences between Himalayan rivers and peninsular rivers, what is perennial rivers? What do you mean by perennial rivers? Then you may ask. पूछ सकते हो अगर किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो कि हिमालयन रिवर्स किसको कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स किसको कहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन देन प्लीज आस्क. Is there any question? Is there any question? Am I audible or not? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? Yes. तो टर्म्स में या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो उसके बाद फिर हम लोग हिमालयन रिवर्स अलग अलग पढ़ लेंगे. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपका आता है. व्हाट डू यू मीन बाय पेरेनियल रिवर्स? व्हाट इज रिवर सिस्टम? व्हाट आर ड्रेनेज बेसिन? नेम द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया. Differentiate between Himalayan rivers and peninsular rivers. What is meanders? The zigzag path created by river in their flood plain due to their intensive depositional action is called meanders. समझ गए? पूछना है किसी को? मैम आप कल कुछ क्वेश्चंस लिखवाई थी और बोली थी कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर का आप डिफरेंसेस लिखवाइएगा. तो लिख लिए थे तुम लोग? पेरेनियल रिवर, शिवम का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर पेरेनियल रिवर? पेरेनियल रिवर्स आर द रिवर्स where flow of water is maintained throughout the year. शिवम सुनाई पड़ा बेटा? Perennial rivers are rivers where flow of water is maintained throughout the year. वैसा नदी जिसमें सालों भर पानी बहता रहता है. ठीक है? They are also, that perennial river is also known as permanent river. Non-perennial rivers are the rivers where flow of water is not maintained throughout the year. Their flow of water is maintained to particular season only. That is called non-perennial river. They are also known as seasonal rivers. और खास करके non-perennial rivers जो है वहां पे गर्मी में पानी जो है ज्यादातर नदियों में सूख जाता है. पेरेनियल रिवर का एग्जाम्पल हो जाएगा गंगा. नॉन पेरेनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स का एग्जाम्पल में आप महानदी, तापी, ये सब दे सकते हैं. और कोई क्वेश्चन किसी का? 2 नंबर तो हो गया है. हाँ, क्या पूछ रहा है? गिव रीजन वाई हिमालयन. फिर से पूछो, फिर से. सौम्या कुमारी मैम, हिमालयन रिवर एक बार और बता दीजिए. अच्छा, और एक और क्वेश्चन क्या था? गिव रीजन्स वाई हिमालयन. किसका क्वेश्चन था? एक और यस, बोल के भी पूछ सकते हो. वाई हिमालयन रीजन्स कंसिस्ट ऑफ पेरेनियल. हाँ ठीक है. एक है कि एक का क्वेश्चन है कि हिमालयन रिवर्स फिर से बता दीजिए. हिमालयन रिवर्स, आप जानते हैं कि इंडिया का ब्रॉड रिलीफ फीचर्स जो है ये इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. हमारा रिलीफ फीचर क्या क्या है भाई? ग्रेट वॉल ऑफ नॉर्थ, दैट इज हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेटो. रिवर का फ्लो, वाटर का फ्लो हमेशा कब किधर होता है? हाईलैंड टू लोलैंड. तो हमारा नदर्न पोर्शन में हिमालयन माउंटेन है, हाईलैंड.
सदर्न पोर्शन में पेनिनसुलर प्लेटो है, हाईलैंड, तो फ्लो किधर होगा, हिमालय का नॉर्थ से साउथ होगा टुवर्ड्स नदर्न प्लेन, एंड पेनिनसुलर प्लेटो का भी वैसे ही होगा। तो ये जो 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट डिवाइड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इनटू 2 ब्रॉड पार्ट, बीच में चूंकि प्लेन एरिया है इसीलिए। So the river which originated from different parts of Himalayan mountains are called Himalayan river. ठीक है? And the rivers which originated from different parts of peninsular plateaus are called peninsular rivers. अब जैसे हिमालय पहाड़ का जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर एबव सी लेवल है, और मैक्सिमम हाइट आप जानते हैं 8898, मतलब करीब करीब 9000 तक है। बारिश जहां भी होगा, रिवर यानी कि रनिंग वाटर, रनिंग वाटर को पानी कहाँ से मिलता है, बरसात से। ठीक है, जब हिमालयन एरिया में पहाड़ पर जब बारिश होती है तो पहाड़ का नदर्न पोर्शन से होते हुए स्लोप के अनुसार उसका अनइवन माउंटेनियस ट्रैक्स में कई सारा पानी का चैनल फ्लो करता है टुवर्ड्स लोलैंड। इसके अलावा हिमालय का हाइट की वजह से, जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि पूरे वर्ल्ड में स्नो लाइन यानी कि परमानेंटली कवर्ड स्नो कवर्ड एरिया जो है वो 5000 मीटर से शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इंडिया में ये स्नो कवर्ड एरिया 4600 मीटर एबव सी लेवल से शुरू हो जाता है, और पूरे वर्ल्ड में इन जनरल इक्वेटोरियल रीजन को भी अगर साथ में ले तो 5000 मीटर से ऊपर का जो जोन है वो परमानेंटली स्नो कवर्ड होता है। तो हिमालय का एवरेज हाइट ही 6000 मीटर है। वहां पे जो भी बारिश होती है वो मोस्टली स्नोफॉल के रूप में होता है। ठीक है, और वो स्नो पिघलता है, बरसात में पानी, बारिश भी होती है स्लोप के सहारे नीचे रिवर में फॉर्म में दिखता है, और जब बहुत गर्मी आता है तो जो स्नोफॉल हुआ होता है बरसात के समय का, वो स्नो भी गर्मी में जो है वो पिघल पिघल का पानी का सोर्स ले लेता है। तो एक का क्वेश्चन जो था कि हिमालयन रिवर्स ही पेरेनियल क्यों है, क्योंकि यहाँ की नदियों में पानी का 2 सोर्स है। एक सोर्स तो बरसात है, जून से सितंबर तक जो बारिश का मौसम होता है वहां पे, या पहाड़ पे और भी बारिश हो जाती है जब टेम्परेचर कंडीशंस में डिफरेंसेस होते हैं, तो बरसात से यहाँ की नदियों को पानी मिलता है, और जब बरसात का सीजन खत्म हो जाता है, जाड़े में वो पानी जल्दी सूखता नहीं है, तब तक रहता है, और जब गर्मी आता है, जब वाटर टेबल काफी नीचे चला जाता है, पानी धीरे धीरे सूखने लगता है, तो उस समय जो हिमालयन एरिया में 5000 मीटर के ऊपर जो भी स्नो है वो पिघल पिघल के हमारी नदियों को पानी देती है। तो इस तरीके से हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं उसमें पानी सालों भर देखने को मिलता है, इसीलिए बिकॉज दीज हिमालयन रिवर्स आर फेड बाय मानसून रेनफॉल एज वेल एज मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस। इनको पानी रेनफॉल से भी मिलता है और मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस से भी मिलता है, इसीलिए यहाँ पे सालों भर हिमालयन रिवर में पानी होता है। अब जैसे कि गंगा है, हिमालयन रिवर है, ये तो निकलती ही है गंगोत्री ग्लेशियर, उससे पिघल कर 2 सोर्स निकलता है, अलकनंदा भागीरथी, ये दोनों आकर देवप्रयाग में ज्वाइन करते हैं और गंगा का नाम कहलाता है। तो ये इनका तो सोर्स ही है गंगोत्री ग्लेशियर, और ग्लेशियर मीन स्लो मूविंग मास ऑफ आइस। मूविंग इसलिए है कि धीरे धीरे पिघलकर उससे जो पानी का सोर्स मिलता है वो गंगा को मिलता है। आपका इंडस कैलाश पीक से ओरिजिनेट होता है जो कि पूरी तरह से ग्लेशिएटेड है, तो बारिश का पानी मिला और साथ साथ स्नो और आइस गर्मी में जब पिघलता है उससे पानी मिला, तो इस तरीके से इनमें सालों भर पानी होती है, इसीलिए हिमालयन रिवर्स को परमानेंट रिवर या पेरेनियल रिवर कहते हैं। जबकि पेनिनसुलर प्लेटो का एवरेज हाइट 900 से 1200 मीटर है। इस हाइट पर कोई ग्लेशियर और स्नो होने का संभावना नहीं है, कोई स्नोफॉल का डिपोजिशन होने का संभावना नहीं है, तो यहाँ पे जो भी पानी मिलता है यहाँ की नदियों में वो मिलता है आपका मानसून के वर्षा से, तो इसीलिए पेनिनसुलर रिवर सीजनल है। तो यही क्वेश्चन था ना तुम लोगों का कि हिमालयन पेरेनियल क्यों है और पेनिनसुलर रिवर सीजनल क्यों है। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन कि क्यों हिमालयन पेरेनियल है और क्यों पेनिनसुलर सीजनल है? ओके, सौम्या का आ गया, और जिसका ये क्वेश्चन था वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो बताओ।
Do you have any confusion? हो गया? Next. Yes. Okay. शिवाय का भी आ गया, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ जाए हम लोग। हिमालयन रिवर से शुरू करें। डिफरेंसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कल, एक बार फिर ब्रीफली बता देते हैं। ज्यादातर हिमालयन रिवर्स जो हैं हिमालय के पार्ट से निकलती हैं, पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुलर प्लेटो से निकलती हैं। हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरेनियल इन नेचर है, पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल इन नेचर है। हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्गर कोर्सेज, इनका जर्नी जो होता है मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, जैसे कि इंडस 2800 किलोमीटर 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र और गंगा 2400 से 2500 किलोमीटर। लेकिन गंगा का ज्यादातर एरिया इंडिया में है और इंडस और ब्रह्मपुत्र का पाकिस्तान, इंडस का पाकिस्तान में, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में, इसलिए इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन आपका गंगा बेसिन ही है। तो हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्गर कोर्सेज, पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर कोर्सेज, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर में कोई भी नदी ऐसी नहीं है जिसका की लेंथ आपको 1600-1700 से ज्यादा हो, सब इससे कम ही है। और हिमालयन रिवर्स में मैक्सिमम रिवर्स का लेंथ जो है वो आप रिवर्स का जो प्लेन एरिया है वो ज्यादा थिक एंड फर्टाइल इन नेचर है एज कंपेयर टू पेनिनसुलर बेसिन। ठीक है, हिमालयन रिवर्स में जो नदियों के द्वारा बनाई गई जो भी लैंडफॉर्म्स और फीचर्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा हैं पेनिनसुलर रिवर्स से। जैसे कि पेनिनसुलर रिवर्स में डेल्टास वगैरह देखना ज्यादा मिलता है, कहीं कहीं पे फ्लड प्लेन भी मिलता है, लेकिन हिमालयन रिवर्स में आई शेप्ड वैली यानी कि गॉर्जेस, वी शेप्ड वैली, आपका फ्लड प्लेन, इसके बाद फ्लड प्लेन के अलावा आपका आता है मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड डेल्टास। ये सारे फीचर्स क्योंकि इनका लॉन्गर कोर्सेज है, अलग अलग एरिया से फ्लो होकर होती है, इरोजनल एक्टिविटी भी करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं, डिपोजिशन भी करती हैं, तो कई तरह का फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलता है एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स। So these are the main differences of Himalayan rivers and peninsular river. Now let us start with Himalayan rivers. The major Himalayan rivers are Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. We have already discussed that river system refers to the main river with their tributaries. जैसे कि ब्रह्मपुत्र है जो कि तिब्बत में शांगपो और इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, दैट इज ज्वाइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज ऑन देयर वे। ठीक है, दिहंग, दिबंग, लोहित, ये सब आपको ज्वाइन करती है। इसी तरीके से इंडस है ज्वाइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज, अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन इंडस अपनी 5 ट्रिब्यूटरीज के लिए ज्यादा फेमस है, वो है सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड झेलम। तो इसी तरह से गंगा जो है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज यमुना हो गई, और इसके अलावा गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, कोसी, और नीचे से पेनिनसुलर प्लेटो से भी एक रिवर गंगा को ज्वाइन करती है, वो है सोन। तो इस तरीके से गंगा की ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ सभी मेन रिवर जो है वो क्या कहलाती है, रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर्स में 3 रिवर का बहुत ज्यादा नाम आता है, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम, जो कि इनका बेसिन जो है वेस्टवर्ड है, इसका फ्लो जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है, तो इसलिए पहले हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिवर इंडस, या व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर इंडस। नोट इट डाउन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिवर इंडस और व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर इंडस। दिखाओ अपना अपना वीडियो ऑन करके कि लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। सोर्स ऑफ रिवर इंडस एंड ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर इंडस। सोर्स और ओरिजिन एक ही है।
क्या लिखाएगा? हिंदी लिखना है, इसके साथ नंबर है। जहां से राइज होती है, ओरिजिनेट करती है, ओरिजिन प्लेस क्या है? कैलाश पीक इन तिब्बत लिखो, आंसर में लिखो कैलाश पीक इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। सोर्स क्या है? कैलाश पीक इन तिब्बत, ये पूरा ग्लेशिएटेड पीक है, नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर भी पूरा ग्लेशिएटेड लेक है। हो गया, समझ में आ गया? लिखा? नेक्स्ट बोलो। अभी आया है रुद्र कश्यप, बताओ 15 मिनट पहले अभी ज्वाइन कर रहा है, पता नहीं क्या सोच के। ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर इंडस लिखे। इंडस का ओरिजिनेट होने के बाद इसका फ्लोइंग डायरेक्शन किधर है? ईस्ट टू वेस्ट। इंडिया में सबसे पहले किस रीजन में रिवर इंडस फ्लो करती है? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक नंबर में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा रीजन में सबसे पहले इंडिया में इंटर करती है और इंडिया में इसका डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। फ्लो किधर कर रही है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। It enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. It forms picturesque gorges in this part. Picturesque gorges का मतलब है इसका, हाँ? कभी कभी सुना है टूरिस्ट प्लेस के बारे में कि बहुत दर्शनीय है, दर्शनीय स्थल है। ये जो इंडस जो गॉर्जेस बनाती है, गॉर्जेस इज द नेम गिवन टू आई शेप्ड वैली। कल हम बताए थे गॉर्जेस। आई शेप्ड वैली का फॉर्मेशन कब कैसे होता है? अब जैसे कि पहाड़ पे माउंटेन्स में रिवर फ्लो कर रही है, माउंटेन्स इज नोन फॉर इट्स अनइवन माउंटेनियस ट्रैक्ट्स, जिसमें कई तरह का रॉक्स है। ठीक है, ऐसे तो हमारा हिमालयन माउंटेन्स ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से बना है। सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंटेशन होता है, कुछ सॉफ्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ हार्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। जब रिवर के फ्लोइंग डायरेक्शन में हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों तरफ से हार्ड रॉक फाउंडेड अगर है, मतलब अल्टरनेट हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक अगर पाए जाते हैं, तो रिवर क्या करती है? सॉफ्ट रॉक को काटती है और डीप डाउन कटिंग करके आई के आकार का जब घाटी का निर्माण करती है, वैली का निर्माण करती है, तो उस आई शेप्ड वैली को कहते हैं गॉर्जेस। जैसे ही रिवर इंडस अनइवन माउंटेनियस ट्रैक से होते हुए वेस्टवर्ड पे अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होने की वजह से बीच का सॉफ्ट रॉक का डीप डाउन कटिंग करती है, काट काट के हटा देती है, जिससे कि आई शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होता है। और ये आई शेप्ड वैली इंडस बेसिन में इसको थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी मतलब यहाँ के टूरिज्म को काफी प्रमोट करती है। लोग दूर दराज से, देश विदेश से इसको देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये पिक्चर एक गॉर्जेस का फॉर्मेशन करती है। और जहाँ पर भी आई शेप्ड वैलीज बनता है, वहां पे रिवर का स्पीड, रिवर का जो उछल कूद वाला जो ये है, वो बहुत ही खूबसूरत मतलब नजारा प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर जो है दैट मेक पिक्चर एक गॉर्जेस इन दिस पार्ट। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, जम्मू एंड कश्मीर में रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज डिफरेंट है, एंड ओवरऑल इन जनरल रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज 5 हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं, जानते हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। लेकिन जहाँ पे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से जब रिवर होकर गुजरती है, तो दोनों तरफ का पहाड़ से, ठीक है ना, आप जानते हैं यहाँ पे कई सारे पैरेलल रेंजेस हैं, जस्कर है, आपका लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज है। तो जस्कर और लद्दाख से जो हाइट वाला एरिया है, वहां से कई सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो रिवर इंडस को दोनों तरफ से आकर ज्वाइन करती है, जिसमें कि मेन ट्रिब्यूटरीज हैं द जस्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा। दे ज्वाइन रिवर इंडस इन द रीजन ऑफ Jammu and Kashmir. Together with these tributaries, Indus flow through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains at Attock. पहले भी हम बताए हैं, पहाड़ी एरिया में देखोगे बहुत सारे नूडल्स, बोल्डर्स, ये सब नीचे
जमा होते हैं कटने के बाद। और कभी कभी ऐसा भी दिखता है कि ऊपर से पानी का फ्लो आ रहा है लेकिन नीचे आने के बाद वो दिख नहीं रहा है, तो वो पहाड़ में वो सारे रॉक्स अंदर अंदर करती है। तो यहाँ पे भी गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से रिवर उन्हीं रॉक के अंदर अंदर फ्लो करते हुए इमर्ज, मतलब दिखने कहाँ से लगती है, एटॉक के आसपास से, ठीक है ना, and emerges from the mountains at Attock. The Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab, and the Jhelum join together near the Indus near मिथानकोट in पाकिस्तान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो पांचों नदी, जिसके लिए इंडस बहुत फेमस है, इंडस रिवर सिस्टम, जो 5 इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, रावी, झेलम, ब्यास एंड चेनाब, इसमें से रावी, झेलम, ब्यास, चेनाब जो है वो चारों पहले सतलज रिवर को ज्वाइन करती है। और इनका ज्वाइंट स्ट्रीम रिवर इंडस को कहाँ ज्वाइन करता है, इंडिया में नहीं ज्वाइन करता है, ये जाकर पाकिस्तान में, मतलब ये पांचों नदी का ज्वाइंट स्ट्रीम जो है जाके इंडस को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। कहाँ पर, मिथानकोट के पास, ठीक है ना। ये 5 नदियों का बहुत बड़ा योगदान है इंडस रिवर सिस्टम में ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर को जनरेट करने में। और ये इन्हीं रिवर्स, इन्हीं ट्रिब्यूटरीज, इन सब का जो पानी है इससे पाकिस्तान का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड करता है, सारा एग्रीकल्चर हो या कुछ और भी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पांचों नदी जिससे रिवर इंडस का वॉल्यूम बढ़ता है वो सब जाके रिवर इंडस को ज्वाइन करती हैं एज देयर ट्रिब्यूटरीज इन द रीजन ऑफ मिथानकोट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज इन, ये अपने पूरी जॉइंट स्ट्रीम के साथ अब इंडस रिवर से कैसा डायरेक्शन, किधर डायरेक्शन हो जाता है इसका, साउथवर्ड, एंड डिफरेंट एरिया को होते हुए फाइनली ये कहाँ गिरती हैं, फॉल कहाँ करती हैं, माउथ कहाँ है, अरेबियन सी में, ठीक है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। द इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंटल स्लोप। पूरे जर्नी में इंडस का जो प्लेन है, इंडस जो अपना बहुत सारा जो सॉफ्ट रॉक्स को कटिंग कर करके अपने बेसिन एरिया में जो डिपॉजिट करती है, उस तरह का डिपोजिशन से इंडस जो है वो फ्लैट और एक्सटेंसिव प्लेन का फॉर्मेशन करती है, जिस प्लेन में ढाल बहुत ही कम है, ऊंचाई नीचाई बहुत ही कम है। इसीलिए ऐसे प्लेन को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इसका ढाल है वो काफी जेंटल है। इट प्रेजेंट अ वेरी जेंटल प्लेन, ठीक है ना, एक्सटेंसिव एंड जेंटल फर्टाइल प्लेन, जेंटल स्लोप है, विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, और हमको लगता है कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसका भी 3300 किलोमीटर का लेंथ है। तो 2900 किलोमीटर लेंथ है को होकर गुजरते हुए इंडस जो है वर्ल्ड की लंबी नदियों में से एक है, ठीक है। इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कल हम अंतर बताए थे आप लोगों को, कुछ याद है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का अंतर, कोई बताएगा? लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट रिवर में क्या अंतर है, कोई बताएगा? मैम लॉन्गेस्ट जो रिवर सबसे लंबा है और लार्जेस्ट जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है वाटर का। वेरी गुड, वेरी गुड। जो कि जिसका एरिया बड़ा है और ह्यूज विच इज ब्लेस्ड विथ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गई लार्जेस्ट। और लॉन्गेस्ट जिसका लेंथ है, अब जैसे लॉन्गेस्ट में रिवर नाइल का नाम आता है। रिवर नाइल आप जानते हैं कि डेजर्ट से होकर गुजरता है, और डेजर्ट में बारिश कम होती है, तो उस नदी में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है कंपेरेटिवली काफी कम होता है, लेकिन वो बड़े एरिया में फ्लो करती है, लंबे एरिया तक, इसलिए लॉन्गेस्ट है। और लार्जेस्ट में कौन सा आता है, इक्वेटोरियल एरिया का अमेजन रिवर। आप इक्वेटोरियल रीजन का फीचर्स ही होता है हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, जिसकी वजह से उसमें पानी बहुत होता है, बड़ा बेसिन बनाता है वो, ठीक है। तो रिवर इंडस के बारे में बोला जा रहा है कि इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। बता रहा है लिटिल ओवर थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन,
अब देखो 2900 किलोमीटर, अगर इसको 3000 किलोमीटर भी मान लेते हैं तो लिटिल ओवर थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन, मतलब कि इसका 1/3 हिस्सा या उससे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा हमारे इंडिया में पाया जाता है। करीब करीब इंडिया में ये 1800 किलोमीटर का एरिया को ड्रेन करती है, ठीक है ना, जो कि टोटल लेंथ का 1/3 से थोड़ा ही ज्यादा है, ठीक है। तो इंडिया में एक इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में और एक छोटा हिस्सा जो है वो तिब्बत में पाया जाता है। इसका पूरा कोर्सेज जो है वो इंडिया में नहीं है, इसीलिए इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन ये नहीं बनाती है। कौन बनाता है, कौन रिवर बनाती है इंडिया में लार्जेस्ट बेसिन? गंगा। गंगा। यस, गंगा। क्योंकि गंगा ही एक ऐसी रिवर है जिसका मैक्सिमम कोर्स इंडिया में है। थोड़ा सा जाता है बांग्लादेश में, लेकिन इसका ओरिजिन प्लेस भी इंडिया है और फॉल करती है आपका बे ऑफ बंगाल में। इसका आधा जो है इंडिया से वेस्ट बंगाल होते हैं, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और कुछ जो पोर्शन है वो बांग्लादेश से मेघना के फॉर्म में। वहां पे ये मेघना जमुना कई नाम से जानी जाती है, वो होकर कुछ हिस्सा बांग्लादेश में और कुछ ये में, लेकिन मेजर कोर्सेज जो है इसका इंडिया में ही है, इसलिए इंडिया में हम लार्जेस्ट बेसिन बनाती है, ठीक है। A little over a third of the Indus Basin is located in India in the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, and rest is in Pakistan. अब है name the basin. Name the area. Name the state which is under Indus Basin, which is a part of Indus Basin. क्या क्या लिखाएगा उसमें? Which state of India is a part of Indus Basin में क्या क्या लिखाएगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। पंजाब में तो ज्यादातर इंडस डायरेक्टली नहीं है, बल्कि उसकी ट्रिब्यूटरीज है। हिमाचल प्रदेश में भी उसकी ट्रिब्यूटरीज है। डायरेक्टली इंडस जम्मू एंड कश्मीर जो कि लद्दाख एरिया में ही है, ठीक है ना, बाकी जगह इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये 3 स्टेट में जो है